Good morning, my dear respected students, and welcome you all in today's session. Today, we are just begin with the concept of some we are practical demonstration of alter when we talk about alter command. Before that, I am just go with a particular theoretical portion here. My dear respected students, in previous assignment also we have discussed something about something related to alter. My dear respected students, here it is. When we talk about the alter table command, basically the alter table is being related with a structure or a definition of your table. अगर आप इसी प्रकार से भी टेबल के स्ट्रक्चर को आप चेंज करना चाहते हैं, उसमें कुछ एडिशन चाहते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन चाहते हैं, इस प्रकार के कार्य के लिए जो हम यूज करते हैं दैट इज टू बी कॉल्ड एज अ ऑल्टर कमांड. मेरे प्यारे बच्चों, कृपया करके ध्यान को एकाग्रचित करने की कृपालता कीजिए. सबसे पहले हम ध्यान से और प्रैक्टिकल के साथ करेंगे. एक एक पॉइंट प्रैक्टिकली होगा और मेरे बच्चे मुझे सहयोग दें. अब जरा देखिएगा. फर्स्ट पॉइंट सेज टू ऐड अ कॉलम टू एन एग्जिस्टिंग टेबल. बिल्कुल ठीक है. सेकंड इज टू रीनेम एन एग्जिस्टिंग कॉलम. सर बिल्कुल ठीक है. थर्ड इज टू चेंज द डिफॉल्ट, टू चेंज द डाटा टाइप ऑफ एनी कॉलम और टू मॉडिफाई इट्स साइज. बिल्कुल सही है. और लास्ट वाला आ गया, इफ वी वांट टू रिमूव और फिजिकली डिलीट अ कॉलम. सर, can you please give me a practical demonstration for each and everything? Yes sir, I am able to do the same. Okay, my dear respected students, I am just begin with a concept that is my database, that is Aman, and I am just going to display the content select star. Okay, first of all, because we are talking about a structure, rather than writing select star, we write name of the table, describing the structure with the help of DESC or describe S16. Now, my dear respected students, here we have columns R number, name, gender, marks, date of birth, and mobile number. What I'm going to do here, I'm just going to add one column here. For example, a city. I want to add that, and for the field, I'm just going to mention alter table. Name of the table is X16, and what we are going to mention add. यार add से मुझे याद आ गया. When we talk about the alter, remember 4 keywords. First is add, second is change, third is modify, and fourth is drop. ये चारों के चारों कीवर्ड जो हैं, आज हम विचार विमर्श करेंगे इनके ऊपर. बट यू आर सपोज टू मेमोराइज add, change, next is modify, and next or last one is a drop. I'm just going to mention alter table as 16 add. Sir, okay. Sir, as discussion, you are supposed to add the field that is city with a varchar that is a 20 semicolon and hit the enter key. Whenever yes, they do something for us, what we are going to do? Again, we are supposed to mention, here it is, describe as 16. And my dear respected students, now the new field is supposed to be added within your table. जितने लोगों को मेरी बात समझ आई हो, वो कृपया करके हैंड रेज करने की कृपालता करें. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. मजा आ गया, मजा आ गया. मतलब मैक्सिमम लोगों ने हैंड रेज कर दिया. वेरी गुड. अच्छा, अब ना एक क्वेरी आएगी आपके मन में कि यार अब जब हम एक फील्ड को जैसे ऐड कर रहे हैं, क्या उसके अंदर कोई डिफॉल्ट या फिर कुछ उसके अंदर कोई कंस्ट्रेंट या फिर कुछ और चीजें ऐड की जा सकती हैं? तो सर एक एक करके एग्जांपल दे देता हूं. कृपया करके ध्यान को एकाग्रचित करने की कृपालता करें. सर ठीक है. सर मैंने क्या किया, मैंने लिखा ऑल्टर मैंने लिखा ऑल्टर टेबल और मैंने लिखा S16. मैंने अच्छा, अब मैं कर क्या रहा हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू डिलीट दैट पर्टिकुलर फील्ड दैट इज सिटी और दोबारा से उसको कुछ मॉडिफिकेशन के साथ ऐड करता हूँ. मैंने लिखा ऑल्टर टेबल एज S16. आफ्टर दैट फॉर डिलीटिंग, एज वी हैव डिस्कस्ड, देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीवर्ड: ऐड, चेंज, मॉडिफाई एंड ड्रॉप. Drop is for deleting permanently. I'm just going to mention drop city, semicolon and hit the enter key.
and something happens, again what we are going to do, describe the structure. Now it is proved that the column is filling. So now add city with a default city as Fagwara, and you are supposed to mention some cities that only user are supposed to enter cities like Jalandhar, like Fagwara, and like Amritsar. Sir, how we are going to do? Okay, alter table. Sir, name of the table is S16. Very good. Now we are going to use the keyword that is add. Sir, name of the field, that is city. Sir, data type of that particular, sir, 20. Data type is variable type character and size will be 20. Sir, default. डिफॉल्ट सर, डिफॉल्ट क्या था सर? फगवाड़ा। यार फगवाड़ा का पी कैपिटल डालूं, फगवाड़ा। ओके सर, अब क्या करना है सर? अब एक कंस्ट्रेंट लगाइए जिसमें सिर्फ फगवाड़ा, जालंधर और अमृतसर की एंट्रीज हो सके, बाकी कुछ नहीं। मेरे बच्चों को याद होगा सी से स्टार्ट होता है। मैंने डाला चेक, मैंने कहा चेक कर ले। सर किसको चेक करे? सर सिटी को। सर सिटी को अगर एक से ज्यादा सिटीज हैं तो लिस्ट के फॉर्म में कंसीडर करूं, और कीवर्ड कौन सा यूज करूं? इन। इनके बाद मैं क्या लिखूं? JALANDHAR जालंधर। सर कॉमा डाल दिया। सर उसके बाद क्या करूं? PHAGWARA फगवाड़ा। सर उसके बाद क्या करूं? अमृतसर, अमृतसर। अब ये एक ब्रैकेट क्लोज कर दी मैंने। वेरी गुड। कहता सर ये तो लिस्ट की हो गई। सर दूसरी ब्रैकेट क्लोज कर दी। सर हो गया। सर अब क्या करें? सेमीकोलन एंड हिट द एंटर। सिंगल कोट्स भी आएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे रोमित जी, रोमित आप कुछ कहना चाहते हैं? यू वांट टू से समथिंग? सर मैंने नहीं कुछ कहा। तू हट जा, तू फोन पे बातें करता है, तेरे को मैंने तेरी पिटाई कर देनी ओए। सर मैंने कुछ कहा। अच्छा सर मैं भागता। कोई बात, सॉरी, कोई बात। What happened now? What we are going to do here? What happened? Something is going to be happened here. सर अमृतसर पे सिंगल कोट भी आना था। अरे वाह क्या बात है। अच्छा जी, मेरा प्यारा प्यारा, ये कौन बोला? कौन था? एक बार बताना जरा। भव। भव को ना मैं तो भव की पिटाई कर देनी है, बता दूंगा। एंड एंटर। अच्छा अब मैंने किया यूज अमन मेरा प्यारा, और मैंने किया DESC और कर दिया S16। वेरी गुड। अब मैंने दोबारा, सॉरी मुझे रिपीट करना पड़ेगा, मैंने लिखा ऑल्ट, हियर इट इज अ टेबल S16। S16 के बाद कवल जी सर क्या कर रहे हैं? ऐड। क्या ऐड कर रहे हैं? सिटी। डाटा टाइप इज varchar, साइज विल बी 20। ओके सर। सर डिफॉल्ट, डिफॉल्ट में क्या आया? फगवाड़ा। सर उसके बाद सर चेक आ गया। सर चेक। सर किसको? सर सिटी। लिस्ट है इन। सर क्या किया? अब डाला JALANDHAR। ओके, आफ्टर दैट PHAGWARA से डाल दिया। अब डाला अमृतसर। सब कुछ ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, हिट द एंटर। जैसे ही हिट एंटर किया उसने मुझे बोला कुछ हुआ। मैंने कहा अच्छा। कहता अगर कुछ हुआ तो बता दो। मैंने जैसे एंटर हिट किया, इसका मतलब है अब मेरे पास एक फील्ड ऐड हो गया सिटी नाम का, और बाय डिफॉल्ट उसके अंदर क्या ऐड हो गया? दैट इज फगवाड़ा। और कंस्ट्रेंट लग गया कि अगर आप इसमें वैल्यू डालेंगे, द ओनली वैल्यूज एक्सेप्टेड with this particular field is जालंधर, फगवाड़ा एंड अमृतसर। मेरे बच्चों को जिनको मेरी बात समझ आई हो वो क्या करें? वो हैंड रेज कर दें। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा सर अब अगली बात, सर अगली बात, सर अगली बात। ठीक है सर, अगली बात पे आ जाते हैं अगर आप कहते हो तो। सर ऐसा भी है कि जैसे अगर मैं किसी पे प्राइमरी की या किसी पे यूनिक की या किसी और पे अल्टर टेबल के हेल्प से लगाना चाहूं तो पॉसिबल है? सर ट्राई करके देख लेते हैं, ट्राई करने में क्या हर्ज है? कहता सर बिल्कुल ठीक है। कहता आप किस पे ट्राई करें?
कहता सर ऐसे करना, आप ना वैसे ही हम लगा के चेक कर लेते हैं। कहता सर कर लीजिए। कहता अब क्या करना सर, आप लगाओ किस पे सर, जेंडर पे लगा के दिखा दो यूनिक की। कहता चल लगा देते हैं यार, ट्राई कर लेते हैं। मैंने लिखा ऑल्टर टेबल, नेम ऑफ द टेबल इज F16। कहता सर डाल दिया। सर क्या करूं, ऐड। सर क्या ऐड करना चाहते हो, सर यूनिक की। सर यूनिक की, सर किसके ऊपर लगाना चाहते हो, सर जेंडर पे। सर हिट एंटर करके देखना। वो कहता है सर नहीं लग सकती। सर क्यों नहीं लग सकती, सर क्योंकि वहां पे तो डुप्लीकेट एंट्रीज पहले से ही लगी हुई हैं। कहता सर ठीक है। कहता सर अब क्या करें। कहता सर एक बार एम नंबर पे लगा के देख लो, शायद वहां पे डुप्लीकेट वैल्यूज ना हो। कहता मैंने एंटर किया, मैंने एम नंबर पे हिट किया। कहता सर वहां पे भी डुप्लीकेट है। कहता सर भाई एक ही चारा बच गया। कहता क्या। कहता सिटी पे लगा लो, सिटी पे वैल्यू नहीं डाली हुई। कहता ठीक है। कहता वो तेरी सिटी पे डाला, सिटी पे भी नहीं लग रहा। कहता अच्छा। कहता अब फिर किस पे डालें। डाला यहाँ पे। सर अब मेरे, नेम। अरे रुक जा भैया, नेम कौन था ये। मैंने नेम पे डाला और जैसे ही नेम पे डाला लग गई। और मैंने यहाँ पे दोबारा आके किया डिस्क्राइब। मैंने यहाँ पे आके मेंशन किया डिस्क्राइब, DESC S16, हिट द एंटर की। अब जैसे ही मैंने देखा, कहता है यहाँ पे हमने किसके ऊपर लगाया था, नेम। कहता नेम पे तो यार पहले लगी हुई थी। कहता एक बार देखना। कहता दोबारा चेक करना, ऑल्ट। अब हमारे पास और कौन सा बचा है, हमने जेंडर पे लगा लिया, मोबाइल नंबर पे, सिटी पे, कौन सा बचा है, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ। एक बार चेक करके देखते हैं। मैंने लिखा DOB। कहता DOB पे लगा के चेक कर लें। कहता करिए सर। कहता इस पे भी डुप्लीकेट एंट्री आ रही है। कहता सर कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ। कहता अच्छा। कहता कहीं पे अप्लाई नहीं हो रहा। कहता नहीं। अब क्या करते हैं। कहता सर एक ऑप्शन कर लेते हैं। क्या किया, हमें लिखा ऑल्टर टेबल S16। कहता सर कर लिया। कहता अब क्या किया, अब कहता कर देते हैं ऐड। सर क्लास, सर वैर कैर 20, वैर कैर 20 करके एंटर हिट किया। सर कहता आ गया डिस्क्राइब S16। कहता सर बन गई बात। कहता अब क्या करें। कहता सर इस पे लगा के चेक कर लो एक बार। कहता ठीक है। कहता अब मैंने किया, यहाँ पे मेंशन किया और यहाँ पे आया, यहाँ पे लिखा जय हो मेरे प्रभु, मान गए मेरी बात। और मैंने लिखा डिस्क्राइब S16, एंटर हिट किया। और जैसे ही एंटर हिट किया मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको यूनिक लिखा नजर आ रहा है। जिसको मेरी बात समझ आ गई हो कृपया करके हैंड रेज करने की कृपालता कीजिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत 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 सारे बच्चों ने कर दिया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अच्छा अब कहता है सर ऐड वाली वेरिएशन तो करवा दी। कहता अब आपने सेकंड बोला था टू रीनेम एन एग्जिस्टिंग कॉलम। कहता है एग्जिस्टिंग कॉलम जो है उसको रीनेम करके दिखा दीजिए। कहता सर अभी कर देते हैं। कहता सर नेम को एस नेम करके दिखाओ। चलो पहले क्या किया, लिखा ऑल्टर टेबल S16। कहता अब यार ऐड नहीं, यार ऐड तो नहीं आना चाहिए यार, चेंज, चल चेंज ट्राई करके देख लेते हैं। मैंने लिखा चेंज। कहता चेंज करो। कहता किसको चेंज करो। कहता नेम को। कहता वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कहता किसको चेंज करो, नेम को। और कहता नेम में सर डालो, नेम की जगह क्या चाहिए हमें। कहता सर एस नेम चाहिए। कहता डाटा टाइप को चेंज वगैरह करनी उसकी। कहता डाटा टाइप तो वैरकैर ही रहने देते हैं, सिर्फ उसको ना पहले 20 है अब 50 करके चेक कर लेते हैं कि होता है कि नहीं। कहता ठीक है। कहता एंटर हिट किया। कहता वेरी गुड। कहता हो गया। कहता हुआ क्या। कहता डिस्क्राइब देखा और जैसे ही चेक किया, कृपया करके इस और ध्यान को एकाग्रचित कीजिएगा। अब आपके पास दो चीजें अपडेट हो गई। एक तो आपके पास जो नेम था वो एस नेम हो गया, और जो वैरकैर पहले आपको टेबल में 20 नजर आ रहा था वो क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 50। अच्छा इसमें ना एक चीज इंपॉर्टेंट है, एक चीज देखना जरा। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, मैंने लिखा S16, मैंने एंटर हिट कर दिया। अच्छा अब ये स्ट्रक्चर जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से मतलब कि ऐसा
जस्टिफिकेशन नहीं हो रही होगी, तो हम क्या करते हैं, मैंने लिखा ऑल्टर टेबल S16 और मैंने किया ड्रॉप किया सिटी को और ये कर दिया, मतलब सिटी को ड्रॉप कर दिया क्योंकि सिटी के अंदर अभी तक तो हमने कोई वैल्यू तो डाली नहीं है ना। और अगर मैं देखूं डिस्क्राइब S16 और मेरे पास क्या है, मेरे पास क्लास मेरे पास है। चलो एक बार मैं इसको करता हूँ कि स्क्रीन पे आपको अच्छे तरीके से विजिबिलिटी आती है। यस आ गई, बिल्कुल ठीक है। अब मैं क्या किया मैंने, अब आप देखिएगा जरा यहाँ पे ध्यान से देखना, अब मेरे पास ये आर नंबर अवेलेबल है और इसकी जो बाय डिफॉल्ट अगर आप चेक कर रहे हैं तो जो हमने जब क्रिएट किया था तो डाटा टाइप इंटीजर डाला था। अब कहता है कि क्या ये पॉसिबिलिटी है जिसके अंदर वैल्यूज डली हुई हैं उनका डाटा टाइप चेंज कर दूं? कहता सर कर तो सकता हूं पर ट्राई करना पड़ेगा, कोई पक्की जिम्मेवारी वाली बात नहीं है, सिर्फ एक बार ट्राई कर सकता हूं। कहता ठीक है, कहता लिखा ऑल्टर टेबल, कहता नेम ऑफ द टेबल S16, कहता बिल्कुल सही है। कहता अब क्या करूं, चेंज, कहता किसको चेंज करूं, आर नंबर, कहता नंबर आर नंबर ही रहने देता हूं। कहता ठीक है यार सेम ही रहने दे, कहता ठीक है जी। कहता अब क्या किया, रेदर देन इंट मैंने लिख दिया डेसिमल और मैंने यहाँ डाल दिया 5,2, चेक करके देखता हूँ चलता है कि नहीं, और ये चल पड़ा। अब मैंने क्या किया, अब मैंने जैसे ही यहाँ पे दिखाया आपको तो इंफॉर्मेशन देखिएगा प्लीज कि जब आपने देखा पहले आपको रोल नंबर जो है वो आपको विदाउट डेसिमल नजर आ रहा था, पर अब आपको विद डेसिमल नजर आ गया। सर ये तो अच्छा नहीं लग रहा। कहता क्या हो सकता है कि दोबारा वापस उसी फेस में चले जाएं? कहता बिल्कुल हो सकता है। कहता कैसे सर? कहता आपने लिखा ऑल्टर टेबल, कहता हाँ जी। कहता अब इसको हटा के बिल्कुल सिमिलर वे में आप क्या करिए, यहाँ दोबारा लिख दीजिए एंटर लिख के एंटर प्रेस करिए और आशा करिए कि जो आप चाहते हैं वो हो जाएगा। और जैसे ही मैंने दोबारा क्लिक किया तो वही सेम चीज मुझे वहां पे नजर आ गई। मेरे बच्चों को जिनको चेंज समझ आया हो, अरे वाह, मेरे बोलने से पहले ही उसने हैंड रेज कर दिया, वाह बेरी जी ने, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इसको पता है कि सर ने अगली बार सर क्या बोला। यहाँ पे इंट की जगह स्ट्रिंग चेंज कर सकते हैं? कहाँ पे, रोल नंबर में? यस सर। ये ले यार, ऐसे थोड़ी, सिर्फ पता है क्या है, मैं तो इस चीज में विश्वास करता हूँ भाव कि करके देख लो, मतलब ये मत सोचते रहो कि होगा कि नहीं होगा या क्या होगा, आप करके देखिए आपके सामने आ जाएगा। मैंने अभी वेरकेर किया 10 कर दिया, एंटर हिट किया और प्रभु का नाम लिया और बोला हो गया। अब मैंने क्या किया, अब मैंने दोबारा यहाँ पे आया सेलेक्ट स्टार और मैंने एंटर किया। अब इसने कुछ मेरे ख्याल से बाकी डाटा में तो कोई बदलाव नहीं किया मुझे लगता है, पर इसने किया पता है क्या है, अगर कुछ समझ आ रहा है, इसने रीऑर्डरिंग से कर दिया है ना, शफल कर दिया डाटा को, यस सर। किसी बेस के ऊपर इसने डाटा को शफल किया। और बाकी अगर दोबारा वहीं पे घर लौटना हो तो घर लौटने के लिए दोबारा वही टाइप कर दीजिए, और मैंने कर दिया जय हो प्रभु, और जय हो प्रभु के साथ साथ में मैंने डाला और एंटर हिट किया, सेम डाटा वैसे ही नजर आ गया। यहां तक मेरे बच्चों को मेरी बात क्लियर है सबको? अब चौथा जो कॉन्सेप्ट हम आज के बारे में बात करेंगे, दैट इज टू बी कॉल्ड एज अ मॉडिफाई। यार मॉडिफाई ना, अगर मैं सच्चाई बताऊं तो मॉडिफाई समवेयर इज रिलेटेड विद अ चेंज, पर पता है सिर्फ डिफरेंस क्या है कि इसमें आप चेंज के अंदर ना कोई डिफॉल्ट वैल्यू या कुछ ऐसी चीजों को आप अलॉट नहीं कर सकते, बट यहाँ पे वो की जा सकती हैं। जैसे मैंने क्या किया, मैंने लिखा डिस्क्राइब S16, मैंने एंटर हिट कर दिया। अच्छा अब मैं क्या देना चाहता हूँ, मेरे यहाँ पे वैल्यूज मेरे पास गिवन है। अब मैं फॉर एग्जांपल मैंने लिखा ऑल्टर, ट्राई करता हूँ, ऑल्टर टेबल S16, कहता लिख दिया, कहता एंटर हिट किया, कहता अब मैंने चेंज की जगह लिखा मॉडिफाई, मैंने लिखा मॉडिफाई और मैंने क्या किया, मॉडिफाई में मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ जेंडर को करता हूँ, मैंने लिखा जेंडर, कहता जेंडर आ गया, ठीक है, मॉडिफाई जेंडर। और जेंडर को क्या करना चाहते हो आप उसके साथ, उसके डाटा टाइप को चेंज करता हूं। पहले वो करेक्टर है, अब मैं उसको वैरकेर कर रहा हूं 5, और एक और चीज साथ में ना कोशिश कर रहा हूं कि शायद होती क्या नहीं, मैंने लिखा डिफॉल्ट, DFAULT, डिफॉल्ट, मैंने डिफॉल्ट किया और डिफॉल्ट में साथ में ना मैंने एक वैल्यू वैसे डाल के देख ली कि चलो होता है कि नहीं, एक बार चेक तो करें यार। मैंने सेमीकोलन डाला, इसका मतलब है कि मैं कर क्या रहा हूं, मैं मॉडिफाई कर रहा हूं
किसी फील्ड को, उस फील्ड का नाम जेंडर है, पहले उसकी डाटा टाइप कैरेक्टर थी, अब वैरचर हो रही है और साइज 5 हो रहा है, और डिफॉल्ट उसको m देने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने एंटर हिट किया और होपफुली आशा की कि ये काम होगा। अब चल तो पड़ा। अब मैंने यहाँ पे आके क्या किया, मैंने चेक किया, और जैसे ही मैंने यहाँ पे आके चेक किया, कृपया करके ध्यान दीजिए कि मैंने जैसे ही जेंडर के अंदर यहाँ पे मॉडिफिकेशन की, एक तो उसका डाटा टाइप कैर से वैरचर 5 हो गया, और एक मेरे प्यारे बच्चों उसके अंदर जो डिफॉल्ट वैल्यू है दैट विल बी एम। एम नाम की जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो आ गई। मेरे प्यारे शिष्यों, लास्ट कार्य अभी तक हमने किया ऐड, अभी तक हमने किया चेंज, अभी तक हमने किया मॉडिफाई। अब कंवलजीत सर करवा रहे हैं लास्ट वाला, दैट इज अ ड्रॉप, जो हम पहले कर चुके हैं, जिसमें पहले में हमने क्या किया था, देखिए जरा, मैंने सिंपल लिखा था ऑल्टर टेबल S16। कंवलजीत सर चाहते हैं ड्रॉप करना, किसको ड्रॉप करना, क्लास को। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आके क्लास को ड्रॉप किया और मैंने एंटर हिट कर दिया। जैसे एंटर हिट किया, होपफुली आशा इस प्रकार की कि वो हमें क्या करेगा, वो हमें ड्रॉप कर देगा, और उसने बिल्कुल ड्रॉप किया। कहता सर एक चीज वैसे मन में आ रही थी आपसे पूछने के लिए, जैसे रोल नंबर है, जैसे एस नेम है, सर यहाँ पे आपने ना जैसे मतलब कि प्राइमरी की और यूनिक की पहले लगाई थी क्रिएट करते हुए टेबल, सर क्या कोई पॉसिबिलिटी है जैसे मैं रोल नंबर से आर नंबर से प्राइमरी की कंस्ट्रेंट जो है वो ड्रॉप कर दूं, फील्ड वैसे ही रहे। सर ट्राई करने में क्या हर्ज है, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। मैं लिखा ऑल्टर टेबल, नेम ऑफ द टेबल F16। कहता सर सही है। कहता अब क्या करूं सर, समझ नहीं आ रही। कहता अब यार ड्रॉप लिख दे, एक बार देख लेते हैं, ड्रॉप लिख के ड्रॉप, और क्या करो प्राइमरी की। कहता अब यहाँ फील्ड फूल्ड मेंशन करने की जरूरत नहीं फिलहाल, क्योंकि तेरे पास टेबल में एक ही प्राइमरी की है, तो तूने प्राइमरी की लिखा और लिख के प्रभु का नाम लेके एंटर हिट किया और देखा कि चल तो रहा है। कहता कुछ ना कुछ तो किया यार इसने। कहता अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ पे आके डिस्क्राइब किया, और कृपया करके ध्यान को एकाग्रचित करने की कृपालता कीजिएगा। पहले यहाँ पे आपको इस टेबल में प्राइमरी की नजर आ रहा था, बट अब आपको यहाँ पे प्राइमरी की नजर नहीं आया। जितने मेरे बच्चों को मेरी बात, कमलजीत सर की बात समझ आई हो वो हैंड रेज कर दे। वेरी गुड वेरी गुड, 7 लोगों ने, 8, वेरी गुड वेरी गुड वेरी Excuse me, गुड। sir. हाँ जी हाँ जी जलोटा साहब, आओ जी, वेलकम वेलकम। सर अगर ये टेबल किसी चाइल्ड टेबल के साथ प्राइमरी फिर की तरफ से होता, फिर वहां पे जो चीजें हैं वो बदल जाती हैं, क्योंकि मेरे बेटे को शायद याद होगा जब मेरे बेटे ने पेरेंट और चाइल्ड टेबल बनाया था, उस केस में मैंने ये बोला था कि अगर आप पेरेंट टेबल से कुछ डिलीट करना चाह रहे हैं तो वो तब तक नहीं होगा जब तक उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज चाइल्ड टेबल में अवेलेबल हो। तो उस चीज yes. के बारे में आप ये इस चीज को हम इलेबोरेट नहीं कर पाएंगे। ये हम इंडिविजुअल टेबल, जब सिंगल टेबल की बात कर रहे हैं तो वहां पे हम चीजों को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देव जलोटा साहब मेरी बात होपफुली आप तक पहुंची होगी। yes. अच्छा अब ना मेरे मन में अगला जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, कहता कंवल जी सर भूल ही गए पीपीटी को, तो अरे नहीं यार कहाँ भूल गए। देखो जी अगला जो कॉन्सेप्ट आ रहा है दैट इज अ ड्रॉप टेबल कमांड। अच्छा अब ये तो आप कहेंगे सर हमने किया हुआ है, सब लोगों ने ड्रॉप टेबल तो किया हुआ है। कहता सर फिर भी एक बार करके तो दिखा दो। कहता ठीक है। कहता अब मैंने किया। अब ड्रॉप का मतलब याद रख लेना, डिलीटिंग बोथ वैल्यूज एज वेल एज स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। मैंने सिंपल लिखा ड्रॉप, ड्रॉप के बाद लिख दिया टेबल, अरे टेबल के बाद लिख दिया S16, और जैसे एंटर हिट किया उसने सारे का सारा कुछ डिलीट कर दिया। अब चाहे कंवलजीत सर यहाँ लिखे डिस्क्राइब S16, वो कहेगा अमन के अंदर ये एग्जिस्ट नहीं करता। चाहे सर यहाँ पे टाइप करें सेलेक्ट स्टार वाली क्वेरी करें तो भी अगर करेंगे तब भी वो कहेगा एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा ये ड्रॉप तो चल पड़ा हमारा। कहता सर अब डाटा कहाँ से लाएं, दोबारा टाइप करें। कहता नहीं यार घबराता क्यों, चिंता क्यों करता है, कंवल जी सर ने सारे प्रबंध घर से करके रखे हुए हैं। अब मैंने एक टेबल बनाया, ये डाटा मैंने पहले से ही रखा हुआ है अपने पास आपके लिए, और मैंने क्या किया, यहाँ पे आया, राइट क्लिक किया, एडिट किया, पेस्ट किया, और एक एक करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैंने क्या किया, अब याद रखना S16 नहीं है, अब मैंने किया डिस्क्राइब S17, जो टेबल को नाम दिया है, ये टेबल स्ट्रक्चर आ गया, और मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम S17, एंटर हिट किया और ये डाटा आपका नजर आ गया।
कहता सर अब छोटी छोटी क्वेरीज, कहता अब क्या कौन सी क्वेरीज, कहता देखना जरा एक बार, कहता देख रहे हैं सिलेक्शन के अंदर, कहता ये सर हमें आता है, कहता यार एक मिनट देख लो बस तुम। सिलेक्शन सबसे पहले डाटा को सिलेक्ट करना, प्रोजेक्शन जहां पे वेयर क्लॉज का प्रयोग करना, रीऑर्डरिंग कॉलम किसी भी कॉलम को आगे या पीछे करना, कहता आप रीऑर्डरिंग भी कर सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके एग्जाम्स में भी आपको आएगी, दैट एलिमिनेटिंग डुप्लीकेट डाटा विद द हेल्प ऑफ डिस्टिंक्ट क्लॉज। कहता सर अब एक एक करके इनकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, कहता हो गई, कहता यार ये तो तुझे पता ही है जो अभी करके दिखाया था, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम S17, कहता हो गया। कहता अब क्या किया, कहता उनकी इंफॉर्मेशन दिखा दी जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1997 से, और मंथ जो है 12, और जो डेट है वो 01, कुछ भी, मतलब कि मैं यहां डाल रहा हूं, मैंने लिखा क्लॉज डाला सेलेक्ट स्टार फ्रॉम S17, क्या करे इसका सर, वेयर क्लॉज का प्रयोग करें जिसमें हम प्रोजेक्शन का प्रयोग कर रहे हैं, डीओबी सर हमारे पास डेट ऑफ बर्थ नाम की क्वेरी है, और क्या करे ग्रेटर देन, मैंने लिख दिया 1997, इससे पहले क्षमा चाहता हूं सिंगल कोट 1997, अब मैंने ये डाला वाई 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 वाई, अब मुझे लगता है मंथ आएगा, मैंने मंथ डाला और उसके बाद 01 डाला और मैंने इसको करके एंटर हिट किया, जो भी इससे ग्रेटर था वो इंफॉर्मेशन नजर आ गई, कहता उनकी इंफॉर्मेशन नजर आ गई, कहता सर बिल्कुल सही है, कहता सर अगली कार्रवाई आई है, कहता रीऑर्डरिंग, कहता रीऑर्डरिंग कैसे, कहता सर मैं पहले चाहता क्या हूं आपको सच्चाई बताऊं, कहता सर बताइए, कहता सबसे पहले आए नेम, कहता ठीक है, मैंने लिखा सेलेक्ट नेम कॉमा, कहता नेम के बाद सर पता है क्या है, कहता नेम के बाद आए उसका जेंडर, मैंने लिखा जी जेंडर, कहता जेंडर के बाद क्या है सर, जेंडर के बाद आए रोल नंबर, कहता सिर्फ यही दिखा देना, कहता कहां से दिखाना, S17 से, और मैंने जैसे एंटर हिट किया ये टेम्परेरी बेसिस पे उसने आपको जो फील्ड है उनको शफल करके आगे पीछे करके आपको स्क्रीन पे दिखा दिया। कहता सर अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कहता क्या, कहता सर जैसे अभी हमने यहाँ पे मेंशन किया, मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम S17, कहता यहाँ पे ना सर जेंडर है जिसके अंदर मेल और फीमेल दो जेंडर्स अवेलेबल हैं, पर मेल और फीमेल दोनों रिपीटेडली आ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि सिर्फ जेंडर दिखा दे और बिना रेपिटेशन के दिखा दे, कहता सही है, कहता सर पर ये फील्ड पे लग सकता है, याद रखना फील्ड पे लगेगा ये, सर मैंने लिखा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, मैंने लिखा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, फील्ड का नाम डाला और लिखा जेंडर, मैंने जेंडर डाला किस टेबल से, फ्रॉम S17, और मैंने जैसे ही एंटर क्लिक किया मेरे बेटा, अगर मैं इस सेम चीज में से अगर ये चीज जो डिस्टिंक्ट वाली है अगर इसको मिस आउट करूंगा और इसको यहाँ पे मेंशन नहीं करूंगा तो क्या होगा, वो सारे के सारे जेंडर्स दिखाएगा, सब लोगों के जेंडर्स दिखाएगा जितना भी डाटा उसके अंदर है, बट अगर आप डिस्टिंक्ट करते हैं तो वो डुप्लीकेशन को, या जो रिडेंडेंसी है, जो डुप्लीकेशन है, जो रेपिटेशन है, उसको रिमूव करके आपको डाटा स्क्रीन पे नजर आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों जिनको मेरी बात समझ आ गई होगी हैंड रेस कर दीजिए कृपया करके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हाँ जी मेरा पुत्र। सर यहाँ पे जेंडर में कौन सी दो वैल्यूज के कोरेस्पॉन्डिंग वो दिखा रहे हैं, कौन सी रोज के कोरेस्पॉन्डिंग? बेटा ये दो चीजें होती हैं भवबेरी जी, अगर आप बड़े बड़े गौर से अगर मेरा बेटा मेरी बात को देख रहा हो तो मैंने यहाँ पे रो के करस्पॉन्डिंग नहीं दिखाया मेरा पुत्र, मैंने इसको जो डिस्टिंक्ट क्लॉज है दैट विल बी एप्लीकेबल ऑन अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट ऑन अ पर्टिकुलर फील्ड, मेरे अगर बेटे को मेरी बात समझ आई हो तो जो डिस्टिंक्ट क्लॉज है मेरा बेटा वो एक फील्ड पे लगाया गया है, एक रो या टपल पे लगाया नहीं गया, और उसका अर्थ था कि जो भी पर्टिकुलर जो विदाउट डुप्लीकेशन जो एंट्रीज उस एट्रीब्यूट के अंदर अवेलेबल हैं वो एट्रीब्यूट्स आपको आपकी स्क्रीन पे दर्शा देगा। अगर मेरे बेटे को मेरी बात समझ आई हो तो हाँ में उत्तर दे, और अगर नहीं आई Yes, तो sir. अगली कार्रवाई बताए। अरे वाह, यस की आवाज नहीं है मुझे, यस सर। अरे वाह चलो जी वेरी गुड। अब हमने क्या किया नेक्स्ट,
हम मूव किए, आगे की ओर बढ़ना शुरू किया। मेरे प्यारे बच्चों, अर्थमेटिकल ऑपरेटर, यार बिल्कुल सरलता वाले जो चीजें हैं अर्थमेटिकल, जिसमें हम किसको ऐड करते हैं, प्लस को, माइनस को, मल्टीप्लाई, डिवीजन, मॉडुलस, ठीक है। और उसके बाद हम रिलेशनल की बात करेंगे। अच्छा, अब ये छोटा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन, वैसे ही नॉर्मल सी चीज, जैसे मैंने लिखा सेलेक्ट, अब मुझे प्लस माइनस करके दिखाना है आपको। मैं लिखा सेलेक्ट, मैंने लिखा 5 + 4 और उसके बाद मैंने एक सेमीकोलन डाल के एंटर हिट कर दिया। अब ये आ गया है ना, लिखा आ गया 5 + 4 दैट इज 9। अच्छा, इसमें एक और चीज है, जब तुम इसको अगर कभी वैसे जरूरत पड़ जाए और आप फील्ड का नाम जो ऊपर देखिए 5 + 4 लिखा आ रहा है, अगर उसको चेंज करना चाहें तो एक क्लॉज यूज कर लेना एज, और फॉर एग्जांपल मैंने यहां डाला सम, मैंने सम डाला और एंटर हिट करने की कोशिश की। जैसे एंटर किया, अब वहां 5 + 4 नहीं आ रहा, वहां पे नॉर्मली क्या आ रहा है, वहां पे आ रहा है मेरे बच्चों आपको सम नजर आ रहा है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने माइनस कर दिया, सिमिलरली माइनस आ गया। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, कंवलजीत सर ने मल्टीप्लाई किया, कहता सर मल्टीप्लाई भी आ गया। सर कंवलजीत सर ने क्या किया, कंवलजीत सर ने डिवाइड किया, सर डिवाइड भी नजर आ गया। सर कंवलजीत सर ने क्या किया, सर कंवलजीत सर ने मॉडुलस किया, और जैसे एंटर हिट किया तो उसने मॉडुलस भी दिखा दिया, उसने आपको मॉडुलस दिखा दिया। कहता सर अब क्या होगा, कहता एक चीज आप और कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम S17, एंटर हिट किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम S17 और प्रभु का नाम लेके एंटर हिट किया। कहता अब क्या करिए, कहता अगर आप टेम्परेरी बेसिस पे, परमानेंट नहीं बोल रहा, अगर परमानेंट करोगे तो अपडेट, अगर टेम्परेरी करोगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, सेलेक्ट आर नंबर कॉमा नेम कॉमा मार्क्स -10। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने लिख दिया मार्क्स -10 फ्रॉम S17, एंटर हिट कर दिया। अब आप जरा ध्यान से देखना, इसने टेम्परेरीली मार्क्स को चेंज किया है, बट अगर कंवलजीत सर सिंपल दोबारा लिख देते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, फ्रॉम लिखा S17 और एंटर हिट किया, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, मैं लिखा सेलेक्ट स्टार और हिट किया एंटर। अब जरा गौर कर लीजिए, यहाँ पे अमनवीर सिंह जी के मार्क्स जो है टेम्परेरीली चेंज हुए थे, 100 से 90 हो गए थे, बट अगर हमने टेबल के अंदर दोबारा चेक किया तो वहां पे उनके मार्क्स मुझे 100 के 100 ही नजर आ रहे हैं। बट अगर मुझे परमानेंटली चेंज करना है तो फिर मुझे यहाँ पे नहीं करना, मुझे एक क्वेरी यूज करनी है विद द हेल्प ऑफ अपडेट, अपडेट के साथ। मेरे प्यारे बच्चों, कृपया करके मुझे गाइड करिए कि यहाँ तक सबको क्लियर है। वेरी गुड, एक बार सारे हैंड रेज कर रहे हैं, वेरी गुड, अपने आप हैंड रेज करना शुरू कर दिया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, अगर मैं वैसे एक आधी क्वेरी आपसे पूछूं, कोई गुस्सा तो नहीं करेगा मुझसे, वैसे मतलब एक आधी, सिर्फ एक आधी क्वेरी मैं पूछना चाहता हूं और आपसे विचार विमर्श करना चाहता हूं। ये देखिएगा, मेरे पास एक यहाँ पे एक टेबल अवेलेबल है, एज सिमिलर मुझे लगता है वही टेबल है जो हम अभी डिस्कशन में ला रहे थे, ठीक है। इसमें सबसे पहले 1 मिनट का टाइम रहेगा, सिर्फ एक बच्चे को मौका मिलेगा टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ओनली दो स्टूडेंट्स वेयर जेंडर इज मेल एंड मार्क्स इज बिलो 90, बिलो 90। दो क्वेरीज आ गई जिनका जो जेंडर है वो मेल हो और जो मार्क्स हैं वो बिलो 90 हो। एक बार हैंड रेस करके बता दीजिए अगर कोई करना चाहता है तो। वेरी गुड वेरी गुड, अमन आ गया, अमन, चल अमन बोल एक बार फिर, वैसी करके देख लेते हैं तब तक। दो क्वेरीज, हाँ जी बोलो, क्या करूं? हाँ जी सर। सर सेलेक्ट स्टार हाँ फ्रॉम S17 हाँ वेयर हाँ जेंडर हाँ जी, M जेंडर इज इक्वल टू सिंगल कोट में M, हाँ जी, M and उसके बाद marks less than एंड मैंने लिखा मार्क्स इज लेस देन 90, 90। मैंने एटरेट कर दिया। ओह वाह क्या बात है।